Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. So we have started this lecture, right? Motion and time हम लोगों ने start कर दिया है, and this is the third chapter for the class 7. What we deal with is कि हम लोग ये जो chapter study कर रहे हैं, ये आपके school examinations में भी आपको help करेगा, as well as जो Olympiad level आप exam fight करना चाहते हैं, उनमें भी ये आपको help करेगा. तो that would be so much beneficial अगर आप सिर्फ इन्हीं लेक्चर से दोनों चीज़ों को आप क्रैक कर पाए. सो इट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल, राइट. एंड द थिंग इज कि आपको क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है. ऑल यू हैव टू डू इज टू watch our videos and that's it, right? And you can do definitely more better than the usual things, right? So what we deal with is we deal with the school examinations as well as for the Olympiads level education, right? And for the 9th and we do fight with the NSC, JS, PRMO and NTSC too. So it would be very much beneficial for all the students who are watching these videos continuously on the continuous basis, and that is why we have prepared lecture by lecture for you all. Right, if you want DPP and study material, you can definitely access them through our Telegram channel. What you have to do is to go on the Telegram app. You have to write TTP07 over there on the search box, and then you can join us. You can have the DPPs and study material. So that is very much beneficial, so that you can get access to those questions what we are providing to you, right? Now see, this is the awesome team. This team is going to help you a lot in your preparation in any competitive examination or your school examination. So that would be easy to do, right? And what you have to do is to just watch our videos. So this is the team which is very doing much hard work for you all, right? So that you can get the quality education or the quality content, quality knowledge for your school examination as well as for the school examinations and Olympiads level examination, right? So that's what we are doing for you, and we have also prepared some packages for you all, right? And what are those, what are the benefits of those? Let me tell you that. I have already told you many times this before, but for the new subscribers I have to do that again, right? So I will be telling you what we have done for you all is that you have to go on www.talkingtextbooks.in on this website, right? When you go on this website, you will be seeing such type of packages over there. These packages are available for every class 6 to 10, all right? And we have prepared two types of packages. The one is for the students who are totally unable to find out the right source of studying or find out a right specific path how to do anything, right? And let's say if they want to fight for the school examination, or let's say if they have decided that they want to find NSO, let's say, all right, let's for an example, and that's what they need to do is there are many numerous books for NSO. What they can do is they can find them directionless when they start their preparations, and that's why we have prepared this package for them, so that they do find a very much direction, all right, so that they can prepare themselves step by step. And what you will be getting in this type of packages is that you will be getting comprehensive study material. That means you will be getting all the questions, all right, you will be getting all the theory part, you will be getting a very much guided and organized way of fighting questions, right? The medium level, the easy level, all right, on the hard level, and the previous year questions, all are things included in the study material, all right. Next thing is recorded live classes. That would be definitely useful because students can't study on their own, right? They need some guided effect and a guided thing. That's why we have included the recorded and live classes, right? The next is homework submission feature, which is important because you should do the homework, right? Every day you should do the homework, and that's what we have prepared, that we will be giving you the homework and you will be submitting them through the Google Classrooms, right? Bi-weekly quizzes is important because you will be going to be tested twice a week. That means you have to study. That there is no option for that. If you want to prepare, if you want to get good marks, you have to study, and that's why it is a very nice way. Revise first and then attempt these quizzes. Simple, right? Periodic test papers will be giving you the taste of the final examination. What you will be getting in the final examination, what are the paper pattern, or how to deal such questions, how to manage time, how to manage stress, and all such things will be clear with the periodic test papers, right? So this is the thing what they will be getting if they find themselves directionless
as if they find themselves unable to do them on their own, they should join us, definitely do that. All right, and the next type of package is the test series package. Means there are various students who study a lot and they want to test themselves, like where they stand, right? So many students have already joined the test series. That means you will be tested among the whole Indians, right? You will be tested among the whole India, and that's what is beneficial for you also, that you can get your place, right? What you can get your rank, you can see themselves at a place like that, your place. So what you will be getting in the test series is you will be getting the periodic test papers, alright, you will be getting the recorded and live classes which is free for everyone, alright, and then they will be getting the bi-weekly quizzes, right? So this is the thing, we have provided the test series as well as we have provided the whole package, so that is very good for everyone, right? Now the thing is, if you want these packages with a little bit of discount, you have to write CY Live. You have to write CY Live code, alright, and after writing this code, you will be getting 30% discount on both the package. You can get 30% discount on 9,000 package, that is the whole package, and you can get the 30% discount on the test series package. You can definitely get that. Alright, what you have to do is to click on buy package, and then you will be forwarded on all the options available here. You can choose any option to pay. Alright, if you have any query regarding anything like what are the packages, what are the benefits, how you will be benefited by, is it beneficial for you or not, so if you are having such type of queries, you can definitely call us on this number. Alright, you can definitely call us on this number and all your queries will be resolved. So it is very much beneficial for you. Alright, you can do definitely much better using these packages, so I would definitely recommend it. Alright, now let's move on to the thing that you have to take your books out, you have to take your copies out and promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and definitely you will be start revising. Revising is the key. You have to revise daily 15 minutes a day. I'm telling you again and again and again, you have to do that. अगर आप रिवीजन करते हैं, alright, अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपके टेस्ट में बेटर चांसेस होंगे कि आप और भी ज़्यादा अपने परसेंटेज को बढ़ा सकें, ठीक है, अपना रैंक को बढ़ा सकें. So that's why I will be telling you revise the key. Alright. Now let's move on to the chapter, and today we are going to study uniform motion and non-uniform motion. Now let me tell you one thing. हम लोगों ने अभी तक distance को है study किया, right? Distance का मतलब क्या हुआ कि भाई कितना exact path आपने travel किया, right? The length of the path you traveled, that's the distance. And when we talk about the displacement thing is the minimum distance between two positions. It can be the initial final, it can be the position of your house and your school, it can be the position of a shop in your house. So it can be any position, but when we talk about the positions changing, we talk about the displacement, right? So that means the displacement is the length between two positions and the distance is the path you have traveled, right? So that means distance does not depend on position. Alright, but displacement does depend on the position, right? So now let me tell you the next step, and that is the uniform motion and the non-uniform motion. What you can get with the uniform. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि जब हम स्कूल में जाते हैं, ठीक है, स्कूल में जाते हैं तो सब एक जैसी यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं, राइट? तो उसको भी हम यूनिफॉर्म बोलते हैं और यहाँ पे हम मोशन को भी यूनिफॉर्म बोलते हैं. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? द थिंग इज, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे सारे बच्चे एक ही जैसे यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं होता कोई रेड पहनकर आ रहा है तो कोई ब्लू पहनकर आ रहा है, कोई ग्रीन पहनकर आ रहा है, ऐसा नहीं होता, राइट? सब लोग एक जैसा यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं, दैट्स व्हाई वो यूनिफॉर्म कहलाती है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मोशन, वी ऑलवेज से दैट कि यहाँ पर हम एक जैसे मोशन की बात कर रहे हैं, मतलब थ्रू आउट द जर्नी वो एक जैसा ही मोशन जो है करता है. कोई भी बॉडी अगर ऐसा करती है तो दैट मीन्स वो एक यूनिफॉर्म मोशन है. Alright, देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है. अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स मे बी. तो हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम एक फिक्स डिस्टेंस को ट्रैवल करें फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में और बार बार यही काम करें, सेम टू सेम. अगर हम बार बार यही काम करें थ्रू आउट द जर्नी, जहाँ तक भी हमको डेस्टिनेशन तक पहुँचना, अगर हम यही काम करते रहे तो दैट मीन्स इट इज़ द यूनिफॉर्म मोशन, राइट? इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो तुम टाइम इंटरवल्स डिसाइड कर रहे हो वो छोटा है या बड़ा. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दैट. देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है. लेट्स से आपने क्या किया, आपने यहाँ से जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट,
और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट. लेट्स से कि भाई आपने अपनी जर्नी को है जो स्टार्ट किया, ठीक है, मान लो आप जो है नानी के घर जाना चाहते हो, ठीक है, एंड लेट्स से कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ए. यू आर राइट हेयर, राइट नाउ ए पर है आप, और आप जाना चाहते हैं नानी के घर, दैट इज एट बी, एंडिंग पॉइंट जहाँ पे है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट कि जब हम ऐसा करते हैं, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और इस दौरान दैट वुड बी अ जर्नी, राइट, आपके लिए तो ये जर्नी ही होगी ना, दैट यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर, तो दैट्स अ जर्नी फॉर यू. तो अगर मैं इसी जर्नी की बात करती हूँ, फ्रॉम ए टू बी की बात करती हूँ, एंड यू ट्रैवल्ड दैट, कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दैट यू आर डूइंग 60 किलोमीटर इन 1 आवर, ऑलराइट, फिर अगेन 60 किलोमीटर इन 1 आवर, फिर अगेन 60 किलोमीटर इन 1 आवर, फिर अगेन 60 किलोमीटर इन 1 आवर. इफ यू डू दैट, आप बार बार एक ही काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन, तो मतलब आप एक जैसा मोशन कर रहे हैं बार बार, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, यही कर रहे हैं ना बार बार फॉर द होल जर्नी. मतलब आपने फर्स्ट आवर में 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, नेक्स्ट 1 आवर में 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, नेक्स्ट 1 आवर में 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, नेक्स्ट 1 आवर में 60 किलोमीटर ट्रैवल किया. सो आपने होल जर्नी में आपने सेम डिस्टेंस रखा, सेम यूनिट ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, राइट, यू हैव सेलेक्टेड, एंड दैट्स व्हाई दिस मोशन इज द यूनिफॉर्म मोशन, राइट. अब हमने क्या बात किया, ये तो चीज़ हमें समझ में आ गई कि अगर हम इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बार बार यही करते हैं, तो फिर वो मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, मतलब एक जैसा मोशन होगा, राइट. अगर हम बात करें इंटरवल्स की, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स में बी, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो ये पूरी जर्नी किया है, लेट्स डू दैट वन थिंग, ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको हम क्या करते हैं, मिनट के हिसाब से देखते हैं. डू वी नो दैट कि भाई, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, तो हम लोग देखते हैं, देखो, लेट मी टेल यू वन थिंग, 60 किलोमीटर इन 1 आवर, और हमें ये बात पता है कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, सो वी कैन राइट 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स. तो मतलब आप 60 किलोमीटर को 60 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, राइट. अब हम क्या करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, दैट मीन्स 1 किलोमीटर पर मिनट आप ट्रैवल कर रहे हैं. अगर आप इस तरीके से जो है जर्नी को ट्रैवल कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर पर मिनट, तो दैट मीन्स दिस इज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट यू आर ट्रैवलिंग. हर एक मिनट में दिस 1 मिनट, दिस 1 मिनट, ऐसे ऐसे करके आप हर 1 किलोमीटर इन 1 मिनट को ट्रैवल कर रहे हैं. तो यू मेड द टाइम इंटरवल स्मॉल, पहले 1 आवर था, ठीक है, अब आपने क्या किया, टाइम इंटरवल को स्मॉल बना दिया, 1 मिनट बना दिया, और उसमें भी आप सेम ही काम कर रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस इन 1 मिनट. 1 मिनट में 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 मिनट में 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 मिनट में 1 किलोमीटर, सो यू आर डूइंग विद द होल, राइट. अब आप क्या कर रहे हो, पूरी जर्नी में सेम काम कर रहे हो, दैट्स वाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इंटरवल्स कितने हैं, इंटरवल्स बड़े हों, इंटरवल्स छोटे हों, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट दैट इज द थिंग कि आपको हमेशा सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है इन दी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, एंड दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन. ऑलराइट, तो अगर एक बॉडी 60 किलोमीटर 1 आवर में ट्रैवल करती है, तो दैट मीन्स वो क्या कहलाएगी, वो एक यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगी, बिकॉज इट इज डूइंग द सेम थिंग थ्रू आउट द होल जर्नी, राइट. सो दिस इज द थिंग आई वांटेड टू टेल यू, दैट यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है यू आर ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम एवरी टाइम ड्यूरिंग द जर्नी. पूरी जर्नी में आप यही काम कर रहे हैं, अगर दैट मीन्स यू आर हैविंग द यूनिफॉर्म मोशन, राइट. नाउ यू हैव टू नोट इट डाउन फर्स्ट बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी विल बी टेलिंग यू नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑलराइट, एंड नॉन यूनिफॉर्म अब तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा.
चलिए अब हम नॉन यूनिफॉर्म के बारे में देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मतलब भाई जो हम चल रहे थे इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो फिर दैट वुड बी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब देखो तुम लोग ये बात भी जानते हो दैट हर जगह का जो रोड है वो सेम नहीं होता, राइट। हाईवे का रोड बहुत अच्छा होता है, लेकिन नॉर्मल अगर हम देखें तो बहुत ही गड्ढे वड्ढे बीच में मिल जाते हैं। तो दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ता है, स्पीड ब्रेकर मिलते हैं, गड्ढे मिलते हैं, तो यू हैव टू डिक्रीज योर स्पीड। और फिर अगर सीधा रोड, अच्छा प्लेन रोड आ जाता है तो हम अपना स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब हम एक पूरी जर्नी में कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज, ऐसा करते रहते हैं, राइट। अगर हमने ऐसा किया तो दैट मीन्स हम हर वक्त अपना स्पीड चेंज कर रहे हैं, राइट। और जब हम अपना स्पीड चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब हम बोलेंगे कि जब कभी भी अगर एक बॉडी ट्रैवल करती है अनइक्वल डिस्टेंसेस को इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम बोल देंगे दैट द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म। भले ही नाउ लेट्स अगेन टॉक अबाउट दैट, लेट रिपीट दैट थिंग कि भाई आपको क्या करना है, आपको ए पॉइंट से जो है जाना है एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू। ऑलराइट, हम अगेन वापस से यही कर रहे हैं। I should write that point. देखिए ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यू आर अगेन स्टार्टिंग योर जर्नी फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज ए एंड यू वांट टू गो एट बी। अब आप बी तक जाना चाहते थे, ठीक है, दिस इज द एंडिंग पॉइंट। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप क्या करें, अगर आप यहाँ पर ए से बी तक जाएं लेकिन आपको अब की बार जो है बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स मिल रहे हैं, ठीक है, अब की बार आपको जो है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट रूट, ठीक है, आप जा तो सेम ही पॉइंट्स पे रहे बट लेट्स से डिफरेंट रूट से जा रहे हैं, राइट, एंड दैट रूट इज ऑल्सो स्ट्रेट, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे कि जब आपको स्पीड ब्रेकर से सामना करना पड़ रहा है, जब आपको गड्ढों से सामना करना पड़ रहा है, तो स्पीड कैन डिक्रीज और इंक्रीज, राइट। बीच में ट्रैफिक सिग्नल्स भी आ सकते हैं, तो यू हैव टू स्टॉप योर व्हीकल, राइट। तो दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, अपना स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा, अपना स्पीड डिक्रीज करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर यही चीज़ है। नाउ अब क्या हो सकता है, लेट्स से ऐसा हो सकता है कि आप 1 आवर के अंदर, ठीक है, फर्स्ट 1 आवर के अंदर यू कैन से दैट, लेट्स से कि भाई फर्स्ट 1 आवर के अंदर, this is not 11, this is 1, alright, let's say कि भाई जो आपका 1 आवर है, फर्स्ट 1 आवर है, ठीक है, उसके अंदर लेट्स से आपने 60 किलोमीटर कवर किया, ऑलराइट, लेट्स से यू डिड दैट। नेक्स्ट 1 आवर के अंदर आपसे सिर्फ 50 किलोमीटर ही कवर अप हो पाया, ऑलराइट, लेट्स से फिर नेक्स्ट 1 आवर के अंदर यू डिड लाइक 30 किलोमीटर एंड इन नेक्स्ट 1 आवर यू डिड लाइक 70 किलोमीटर, ऑलराइट, फिर नेक्स्ट 1 आवर में लेट्स से यू डिड ओनली 10 किलोमीटर, दैट यू मीन्स यू हैव very much covered with the slow speed, right, and let's say the final 1 hour के अंदर you did 60 किलोमीटर। तो अगर ऐसा होता है, you can see that fixed interval of time है, 1 hour 1 hour 1 hour 1 hour, but the distance is डिफरेंट हैं, कभी 60 किलोमीटर कर रहे हैं, कभी 50 किलोमीटर कर रहे हैं, कभी 30, कभी 70, कभी 10, कभी 60। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे एक जैसा तो है ही नहीं, राइट, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म। तो दैट मीन्स कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल जब सेम है तब आप डिफरेंट डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, कौन सा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ये एक जैसा मोशन नहीं होगा, राइट, ये रिपीट हो रहा है, कुछ डिफरेंट हो रहा है, कभी कुछ, तो इट इज टोटली डिफरेंट, राइट। तो दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट दैट अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑलराइट। So you have to note it down. Then we will be talking about the cases. Different cases में हम non uniform को decide करते हैं, and we will be having that cases. Alright, हम 3 cases को decide करेंगे कि इन 3 cases में आपको non uniform motion जो है पता होना चाहिए कैसा है, right? So you have to note it out first. ठीक है, फटाफट से नोट कर लो इसको, उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 cases of the non uniform motion. ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं 3 केसेस। नंबर 1, जो नंबर 1 होगा उसको आप सीख चुके हैं, ठीक है, नंबर 1 आप सीख चुके हैं। तो नंबर 1 इज व्हेन अ बॉडी कवर्स, you will be seeing when a body covers equal distances, alright, you can say the unequal distance, ठीक है, unequal distances in equal intervals of time,
इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऑलराइट, अगर ऐसा केस होता है मतलब कि भाई जैसे आप लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं बट अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं, कभी 60 कभी 50, ऑलराइट, लेकिन टाइम फिक्स्ड है, ठीक है, टाइम इंटरवल्स फिक्स्ड है, तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे, दैट योर मोशन इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑलराइट, तो हम लोग बोलेंगे व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द मोशन विल बी द नॉन यूनिफॉर्म। ऑलराइट, देन the motion will be non-uniform. Now let's talk about the second case. Second case क्या होगा? Second case का देखेंगे आप लोग कि आप लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंसेस सेम कर रहे हैं कवर अप, लेकिन टाइम इंटरवल चेंज हो गए हैं। ऑलराइट, जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, हर लेट्स से 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर, लेकिन आप पहले 60 किलोमीटर को आप कर रहे हैं 30 मिनट्स में कवर, दूसरा 60 किलोमीटर यू आर कवरिंग दैट इन 1 आवर, तीसरा 60 किलोमीटर यू आर डूइंग दैट इन ओनली 20 मिनट्स। तो यू आर कवरिंग द सेम डिस्टेंसेस बट अभी क्या है, टाइम इंटरवल्स चेंज हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं, राइट। ऐसा अगर केस होता है तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म ही कहलाया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम वापस से लिखते हैं कि देखो, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इस बार हमने क्या किया है, इंटरवल्स ऑफ टाइम को अनइक्वल कर दिया है, तो भी ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ऑलराइट, देन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑलराइट, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। लेट्स से कि भाई एक बॉडी है, वो क्या कर रही है, वो सेम डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रही है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रही है, उसके बाद भी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकती है। कैसे, अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करे एवरी सिंगल टाइम, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो भी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। तो द थर्ड केस इज, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, ऑलराइट, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब दोनों सेम कर रही है वो, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ऑलराइट, बट वो क्या कर रही है, इस तरीके से ट्रैवल करने के बावजूद भी अगर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, बट इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ऑलराइट, अगर वो अपनी डायरेक्शंस को चेंज करती है, then the motion is also a non-uniform, then the motion is non-uniform, ठीक है। और ऐसा कौन सा केस हो सकता है, सोचो ऐसा कौन सा केस हो सकता है कि भाई सेम टू सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहे हैं, राइट, सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिस्टेंसेस ट्रैवल हो रहे हैं बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो ऐसा कौन सा केस है। देखो, जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन में जाते हैं, तो वो केस क्या होता है, चेंजिंग डायरेक्शन, यू आर गोइंग टू चेंज योर डायरेक्शन एवरी सिंगल मोमेंट, ठीक है। तो लेट्स से आप जो है ऐसे सर्कल में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आप सर्कल में ट्रैवल कर रहे हैं तो एवरी टाइम यू आर चेंजिंग योर डायरेक्शन, एंड दैट्स वाई अगर आप सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करें, लेट्स से आप सर्कुलर पार्क में चले गए, ठीक है, और आप जॉगिंग कर रहे हैं, तो जब आप सर्कुलर पार्क में जाके जॉगिंग करेंगे तो आप अगर अपना स्पीड कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, आप इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, आप हमेशा डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं सर्कुलर मोशन के केस में, और इसी वजह से क्या होगा, आपका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा बल्कि नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो 3 चीज़ें हमको जो है 3 केसेस हमें ध्यान में रखने हैं। जब हम पहले केस की बात करते हैं, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल
इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उस वक्त हम लोग ये बोल रहे होते हैं दैट द डायरेक्शन इज कांस्टेंट, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, ये फर्स्ट का केस होगा। सेकेंड केस में जब हम बात करते हैं तो वो ये है कि जब कभी भी एक बॉडी ट्रैवल कर रही है अनइक्वल डिस्टेंसेस को, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो दैट इज ऑल्सो अ नॉन यूनिफॉर्म, बट द थिंग इज डायरेक्शन शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। और लेट्स से आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, आप उसी सेम डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। एंड इफ यू चेंज डायरेक्शन तो भी क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, राइट। तो दीज आर द थ्री केसेस वेयर यू कैन गेट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप इसे फटाफट से नोट कर लो। ऑलराइट, अब देखो तुम्हें पता चल गया भाई कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तुम्हें पता चल गया कि भाई नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पीड। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है कि भाई तुम कितना तेज चल रहे हो, लाइक द फास्टनेस स्पीड। ठीक है, जो भी मतलब कोई भी अगर बहुत तेज से जा रहा है ना तो हम बोलते हैं क्या स्पीड से जा रहा है, बिल्कुल हम ऐसा बोलते हैं, राइट। और कोई अगर स्लो होगा, कितना धीरे काम करता है, ऐसा बोलते नहीं बोलते। तो दैट इज द थिंग। अगर आपको कंपेयर करना है मोशन कि भाई कोई चीज़ फास्ट जा रही है, कोई चीज़ स्लो जा रही है, तो दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग जो कि तुम्हें ये बताती है दैट अ बॉडी इज मूविंग फास्ट एंड दिस इज कॉल्ड स्पीड। आप कितना तेज जा रहे हैं, आप कितना तेज ट्रैवल कर रहे हैं, आप कितना स्लो ट्रैवल कर रहे हैं, दैट इज योर स्पीड, राइट। अब स्पीड को पता करने के लिए कि भाई हमको ठीक है समझ में आ जाता है कि दैट अगर हम बहुत तेज जा रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर इन हाई स्पीड, अगर हम बहुत धीरे जा रहे हैं दैट मीन्स वी आर इन लो स्पीड, राइट। बट हाउ टू डिसाइड व्हाट इज आवर स्पीड? हमारी स्पीड क्या है, ये कैसे पता करें कि कितना है हमारी स्पीड? द अमाउंट, इफ वी वांट टू डिसाइड दैट, तो हमें दो चीज़ें चाहिए। एंड व्हाट कैन बी दीज टू? दीज टू कैन बी नंबर वन, जो कि है मेजर डिस्टेंस कवर्ड। इफ यू वांट टू नो कि भाई कोई बॉडी कितना स्पीड से जा रही है, उसका एग्जैक्ट मेजर कि भाई इतना स्पीड से जो ये बॉडी ट्रैवल करके गई, इफ यू वांट टू नो दैट, तो व्हाट यू हैव टू डू इज टू यू हैव टू नो कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहली बात। सेकेंड थिंग, आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम में जो है ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। ऑलराइट, अगर आपको ये बात पता चल जाती है कि भाई इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेट्स से 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, और वो है जो उसने जो है 30 मिनट्स में कवर अप कर लिया, 60 किलोमीटर 30 मिनट्स में कवर अप कर लिया। अब आप इजीली उसका जो है स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे? यूजिंग अ फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होता है दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड, जो कि हमने नंबर फर्स्ट में मेजर किया है। सो इफ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन कि भाई उतना जो डिस्टेंस कवर किया है उसको कवर अप करने में कितना टाइम लिया है, तो यू विल बी सेइंग कि भाई टाइम टेकन जो है, अब अगर इससे हम डिवाइड कर दें कि भाई डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, सो व्हाट वी गेट द स्पीड। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? हमको स्पीड मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई किसी एक बॉडी का कितना स्पीड है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू नो द डिस्टेंस ट्रैवल, यू हैव टू नो द टाइम टेकन। आप क्या करेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल को टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे एंड देन यू विल बी गेटिंग स्पीड, राइट। सो यहाँ पर स्पीड का हम इजीली फॉर्मूला देख सकते हैं। ठीक है, अब नाउ लेट्स टेल मी कि भाई इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। एसआई यूनिट को जानने के लिए आपको डिस्टेंस का ऐसा यूनिट पता है, राइट, आपको टाइम का ऐसा यूनिट पता है, राइट। अब सिंपल है, आप इजीली जो है स्पीड का भी निकाल सकते हैं। कैसे? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड कैसे आप निकाल लेंगे? डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर, मीटर ही होता है ना। जो भी कोई उल्टा सीधा बोलेगा ना सेंटीमीटर या मिलीमीटर, वो मार खाएगा। ठीक है, देखेंगे जो स्पीड है वो होता है मीटर। ठीक है, डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है मीटर, टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड का बन गया ना अपने आप एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। ऑलराइट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आपको कई जगह पे ms-1 ऐसा लिखा हुआ जो है दिखाई देगा, तो इस तरीके से भी हम स्पीड को बता सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है कि भाई फटाफट से नोट करो ताकि हम लोग देखें कितने टाइप्स ऑफ स्पीड होते हैं। मतलब हमको जो है
टाइप्स ऑफ स्पीड भी देखना है और कितना टाइप्स ऑफ स्पीड होता है हमको ये भी जानना है, ठीक है। तो फटाफट से तुम लोग जो है नोट कर लो ताकि हम ये पता कर सकें कि भाई कितने टाइप्स ऑफ स्पीड होता है। ऑल राइट, चलो देखते हैं। नंबर वन पहला स्पीड कि भाई कितने टाइप का स्पीड होता है। जो पहला स्पीड होता है वो होता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। मतलब इसको हम एक तरीके से कांस्टेंट भी बोल सकते हैं अब, क्योंकि अगर देखो तुम खुद से तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो अगर कोई बॉडी अगर एक जैसा डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक जैसे टाइम इंटरवल में, सेम डिस्टेंस इन दी सेम इंटरवल ऑफ टाइम अगर वो कवर करती है थ्रू आउट द जर्नी, दैट मीन्स कि भाई उसका स्पीड जो है वो सेम होगी थ्रू आउट द जर्नी। दैट मीन्स द बॉडी इज हैविंग द कांस्टेंट स्पीड, राइट। उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है अगर वो यूनिफॉर्म मोशन करता है तो। Now let's see, when an object covers equal distances in equal intervals of time, it is said to move with uniform speed. अगर वो equal distances travel करता है equal intervals of time में, तो इसका मतलब वो constant speed यानी कि uniform speed से travel कर रहा है, right? Let's say example, a car moves 10 meter in every 1 second, so its motion is uniform. और यहाँ पर इसका स्पीड क्या होगा, सोचो। देखो, कार मूव्स 10 मीटर इन एवरी 1 सेकेंड, तो यहाँ पे अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करना चाहूँगी, भाई पता करना चाहूँगी कि भाई इसका मोशन तो यूनिफॉर्म है बट कांस्टेंट है कि नहीं स्पीड, तो अगर हम ऐसा करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस जो कि वो 10 मीटर कवर अप कर रहा है इन एवरी 1 सेकेंड, तो टाइम जो है वो 1 सेकेंड है, तो दैट मीन्स उसका 10 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड एंड दिस इज द कांस्टेंट स्पीड वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जब कभी भी हम किसी भी बॉडी को बोलते हैं कि उसका स्पीड पूरा कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, दैट मीन्स वो हमेशा क्या कर रहा है, फिक्स्ड डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, राइट। तो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, बार बार यूनिफॉर्म स्पीड में जो है मूव कर रहा है। अब हम देखेंगे नंबर 2 जो है, लेकिन आप फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। तो हम नंबर 2 को भी देखेंगे कि नंबर 2 जो ऑप्शन है यानी कि हमारा जो टाइप ऑफ स्पीड है वो क्या है, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म। सिंपल, अगर कोई बॉडी बीच में रुक रही है फिर जा रही है, रुक रही है फिर जा रही है, ठीक है, कभी धीरे जा रही है कभी तेज जा रही है, तो स्पीड इज चेंजिंग, और उस केस में हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल मतलब चेंजिंग, ऑलराइट। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंजिंग कंटिन्यूसली, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई चेंज हो रही है इसकी स्पीड, बार बार चेंज हो रही है, तो दैट मीन्स इट इज हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। तो आप लोग क्या बोलेंगे, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, यू कैन सी हियर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और equal distances unequal intervals of time, then it's said to be moving with the non-uniform speed. अगर ऐसा होता है तो that means you will be saying that the body is moving with a non-uniform speed, right? जैसे कि vehicle starting from rest, अब आप देखेंगे कि जब कभी भी आपका व्हीकल जो है, जैसे लेट्स से आप स्कूटर से जा रहे हैं, ठीक है, आपके पापा आपको छोड़ने जा रहे हैं, तो जब तक वो स्कूटर खड़ा हुआ है, राइट, जब तक वो स्कूटर चल नहीं रहा है, रेस्ट पर है, दैट मीन्स उसका स्पीड 0, लेकिन जब वो चलने लगेगा तो धीरे धीरे उसका स्पीड इंक्रीज होगा, 0 से कुछ और वैल्यू जो है उसका हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसका स्पीड चेंज हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। तो दैट मीन्स उस वक्त क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, राइट। तो इसका मतलब व्हीकल की स्टार्टिंग और व्हीकल की एंडिंग मतलब कि भाई जब हमने ब्रेक लगा दिया और वो 0 पे आ गई, ठीक है, तो मतलब उसका स्पीड वापस से चेंज हुआ, कोई एक अच्छा वैल्यू था, धीरे धीरे जैसे ब्रेक लगाया तो धीरे धीरे उसका स्पीड कम हुआ एंड देन स्टॉप, राइट। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, वेरिएबल स्पीड और स्टार्टिंग के वक्त भी वेरिएबल स्पीड। तो जब कभी भी एक बॉडी रुकती है, एक व्हीकल रुकता है या फिर जब एक बॉडी चलना शुरू करती है, तो ये दोनों ही केसेस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केसेस हैं, ऑलराइट। तो हम बोलेंगे कि भाई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो बॉडी ट्रैवल करेगी अगर ऐसा होता है तो। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सेट्रा। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का क्या मतलब हुआ, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब है, लेट्स से आप गए, इस तरीके से मैंने पेन पकड़ा हुआ है, राइट, अब ये मूव नहीं कर रहा है, अभी इसका स्पीड 0 है, जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगी, पर मैं छोड़ूंगी नहीं, ठीक है, मैं गिराना नहीं चाहती ना, इसलिए देखो। लेकिन अगर हम ऐसा करें, ठीक है, आप इसे रबर के साथ ट्राई कर सकते हैं, रबर को कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब रबर को क्या करो, रबर को ऐसे पकड़ो, ठीक है, और रबर को छोड़ दो। जैसे ही आप छोड़ोगे, अब जब तक आपने पकड़ा था वो स्पीड 0 था, है ना, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे तो वो नीचे गिरने लगेगा। जैसे ही वो नीचे गिरने लगेगा तो जब जमीन से बस टच होने ही वाला होगा वहां पर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 स्पीड से कोई एक वैल्यू उसका स्पीड का आना
तो मतलब क्या हुआ, स्पीड चेंजिंग होना, धीरे धीरे बढ़ना, राइट। तो दैट्स वाई वो मोशन भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही होगा। ऑलराइट, तो आप इस तरीके से डेफिनेटली बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने आसपास की लाइफ में देख सकते हैं जहां पे आपको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दिखाई देगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड जो है स्पीड, एंड दैट इज द एवरेज स्पीड। अब जैसे मान लो, ये तो सच्ची बात है कि भाई हम लोग जनरली क्या करते हैं, कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, गड्ढे आते हैं, ठीक है, हो सकता है क्राउड आ जाए, राइट, हो सकता है कहीं पे बहुत भीड़ हो सकता है तुम्हें नैरो रोड मिले, राइट। तो इन सभी केसेस में आपकी स्पीड होगी वो वेरिएबल होगी, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा होगा, राइट। तो अगर आपकी एक जर्नी है, ठीक है, मतलब लेट्स से आप घर से जो है स्कूल गए और स्कूल तक जाते जाते आपका जो स्पीड है वो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा होता रहा। अब जब हम ऐसे बात करती हैं, तब जब वेरिएबल स्पीड होती है आपकी थ्रू आउट द जर्नी, उस वक्त हम ऐसी स्पीड की बात करते हैं जो कि एवरेज स्पीड होती है। और ये एवरेज स्पीड आपको ऑलमोस्ट बताती है कि भाई थ्रू आउट द जर्नी आपकी एवरेज स्पीड कितनी है। इसका मतलब कि भाई ये आपको बताएगा ऑन एन अप्रॉक्स आप कितना स्पीड से गए, ठीक है, ये आपको बताएगा, ऑन एन एवरेज हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब बोला जाएगा तब क्या होगा, हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एवरेज स्पीड हमेशा वेरिएबल स्पीड का ही होता है, एवरेज स्पीड कांस्टेंट स्पीड का तो सेम वैल्यू रहता है। जब कभी भी कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जाती है तो वही उसका एवरेज वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, वही सेम टू सेम वैल्यू एवरेज वैल्यू बन जाएगी। लेकिन अगर बॉडी कोई भी वेरिएबल स्पीड के लिए जाती है तो एवरेज स्पीड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। सो हाउ विल यू बी कैलकुलेटिंग दैट, you will be writing average speed is equals to distance covered, total distance covered, not distance covered. We have to remember that thing that there has to be a total distance, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द जर्नी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, जितना भी टाइम आपने उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए लिया है, ठीक है। तो इफ यू डू दैट, अगर आप ऐसा कर देते हैं, लाइक इफ यू राइट दैट कि भाई टोटल जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, जितना आपने लिया है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस पूरी जर्नी का एक एवरेज स्पीड जो है आप बता सकते हैं। तो ऑन एन अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि भाई हाँ, इस जर्नी में लेट्स से कि भाई आपका जो जर्नी है, ठीक है, उसमें कभी क्या हुआ कि लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज द जर्नी, हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई एक पॉइंट से जा रहे हैं, ठीक है, लेट्स से वी स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड यू मूव टिल हेयर, ठीक है, दिस इज द फाइनल पॉइंट बी, यू वांट टू रीच हेयर, ठीक है। नाउ लेट्स से कि भाई टोटल डिस्टेंस जो है ए और बी के बीच में, एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस जो है लेट्स से 100 किलोमीटर है, ठीक है, एग्जाम्पल 100 किलोमीटर है ए से बी तक का डिस्टेंस टोटल, ठीक है। और लेट्स से कि आपने क्या किया, 30 मिनट्स के अंदर आपने किया कवर अप कितना, 20 किलोमीटर, ऑलराइट। फिर आपने क्या किया, 50 किलोमीटर कवर अप किया आपने 40 मिनट्स में, ऑलराइट। फिर लेट्स से कि भाई आपने क्या किया, 10 किलोमीटर कवर अप किया 2 मिनट्स में, ऑलराइट। फिर आपने क्या किया, लेट्स से 30 किलोमीटर कवर अप किया, 20 and 50 70, बचा ही इतना, लेट मी राइट दैट अगेन, ठीक है। देखेंगे हमारा कितना हुआ, 20 और 50, 70 और 80। अब कितना बचा हमारे पास, हमारे पास बचा है, कुछ गड़बड़ हुई है, राइट, लेट मी डू दैट अगेन, जो कि है हम लोग पेन लेते हैं, राइट। देखेंगे हमारे पास ए से बी तक हमको जाना है, राइट, ए से बी तक अगर हमको जाना है और हमारा जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 100 किलोमीटर। अब इस 100 किलोमीटर को लेट्स से कि आप ना अपनी कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, आपको जगह जगह पे जो है ऑल्टरनेट स्पीड से जाना पड़ रहा है, ठीक है, चेंज करना पड़ रहा है, वेरिएबल स्पीड है आपका। तो स्पीड कितना है, देखो पहले 30 मिनट्स के अंदर आपने 20 किलोमीटर कवर अप किया, नेक्स्ट 40 मिनट्स के अंदर आपने 50 किलोमीटर कवर अप किया, नेक्स्ट 2 मिनट्स के अंदर आपने 10 किलोमीटर कवर अप कर लिया, ठीक है। अब बचा कितना, 50, 60, 70, 80, ठीक है, और
20 किलोमीटर, लेट्स से आपने 20 किलोमीटर 8 मिनट्स में कवर अप कर लिया, ठीक है, मान लीजिए। अब आपकी स्पीड जो है वो ऑल्टर है, इसमें देखेंगे अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना है आपका स्पीड, यहाँ पर आपका स्पीड है, लेट मी टेल यू द स्पीड फॉर एवरी सेक्शन, ठीक है। अगर आप एवरी सेक्शन की बात करते हैं तो जो पहला सेक्शन है कितना स्पीड होगा, लेट मी टेल यू द स्पीड हियर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 20/30 किलोमीटर पर मिनट, 20/30 किलोमीटर पर मिनट, ऑलराइट। सेकेंड वाले केस की बात करें तो कितना है 50/40 किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है, 10/2 किलोमीटर पर मिनट। फिर हम नेक्स्ट की बात करें तो क्या कितना हो जाएगा 20/8 किलोमीटर पर मिनट, ऑलराइट। और अगर ऐसा होता है तो आप खुद से देखो, हर एक सेक्शन में, इस सेक्शन में, दूसरे सेक्शन, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन में जो स्पीड है वो वेरिएबल है, चेंज हो रही है, राइट। अब क्योंकि जब ये चेंज हो रही है तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एवरेज स्पीड। और अगर हम इस केस की एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं, अगर हम यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी सीइंग द टोटल डिस्टेंस दैट इज 100 किलोमीटर। तो आप डायरेक्टली लिख देंगे 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, कितना मिला 30 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स 70 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स, यानी 80 मिनट्स आपने लिए, यानी 1 आवर 20 मिनट्स आपने लिए। तो इसका मतलब 80 मिनट्स जो है आपने लिए। नाउ यू कैन सी द वी एवरेज इज द सेम थ्रू आउट द जर्नी। तो दैट मीन्स आपने जो ये वेरिएबल स्पीड इसको यूज किया है, ये जो वेरिएबल स्पीड से आप गए हैं उसकी एवरेज स्पीड हम लोग निकाल कर एक फिक्स वैल्यू बता सकते हैं, राइट। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ कि भाई तुम अगर चेंजिंग स्पीड से किसी भी जर्नी को ट्रैवल करते हो तो वी कैन से वन स्पीड जो कि क्या हो सकती है, जो कि कांस्टेंट हो सकती है थ्रू आउट द जर्नी। आप एक एवरेज, ऑन एन एवरेज पे बात कर सकते हैं, राइट। तो आप बोलेंगे दिस इज योर एवरेज स्पीड, कि भाई कम से कम इतना जो है हम लोग चले, राइट, दिस इज योर एवरेज स्पीड, और इसी स्पीड से हम लोग जो है आ रहे हैं। तो हम जनरली पता नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट मोमेंट पे जो हम पता नहीं कर पाते हैं, सो वी डू दैट फॉर द एवरेज स्पीड, हम एवरेज स्पीड को ही बताते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड टाइप ऑफ स्पीड थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, सिंपल, आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ सेल बोट ट्रैवलिंग 100 मीटर इन 140 सेकेंड। तो क्या स्पीड है सेल बोट की जो कि 100 मीटर से ट्रैवल कर रही है और 140 सेकेंड्स के अंदर ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो हम फटाफट से स्पीड कैलकुलेट करें, आप लोग भी सब मेरे साथ साथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो कितना है 100 मीटर, और जो टाइम है वो कितना है, वो है 140 सेकेंड। तो अब स्पीड कितना होगा आपका, आपको सिंपली क्या करना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन कर देना है, ऑलराइट। तो कितना हो गया है 100 डिवाइडेड बाय 140, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, सो इट वुड बी 5/7 मीटर पर सेकेंड। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप डेसिमल में इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको 0.7 समथिंग कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इट वुड बी 0.7 मीटर पर सेकेंड यू विल बी गेटिंग, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं खुद से ही भाई कि भाई जीरो, हम लोग सिंपली स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ, ठीक है। तो हम सिंपली इस तरीके से जो है स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी मच ईजी, ऑलराइट। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको मेन ध्यान रखना है डिस्टेंस का, आपको मेन ध्यान रखना है टाइम टेकन का, एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज टू डिवाइड एंड कैलकुलेट, दैट्स इट, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम लोग स्पीड बताते हैं। तो मैंने आपको आज क्या बताया है, यूनिफॉर्म मोशन बताया है। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक जैसा मोशन। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वेरिएबल, चेंजिंग मोशन, ठीक है। और जब हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। एंड देन व्हाट वी डिड, जो हमने स्टडी किया, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड हमने क्या बताया, यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड, वेरिएबल स्पीड यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एंड थर्ड, जब हम वेरिएबल स्पीड से कभी मूव करते हैं
तो हम एक बात करते हैं एवरेज स्पीड की, मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, तो इट वुड बी एन एवरेज ऑफ ऑल द स्पीड्स, ठीक है, जितनी भी स्पीड्स थी ना, अलग अलग वेरिएबल स्पीड्स थी, उन सभी का एवरेज हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो दैट वुड बी द एवरेज स्पीड, राइट। तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट ऑल द स्पीड्स एंड दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, राइट। अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी गोइंग टू डिस्कस द वेलोसिटी, द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग the difference between the speed and velocity. All right, so thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and if you think so that you are getting the knowledge, very much knowledge, and then you want to spread it out, then do it. You should spread that out. Everyone has a right to educate themselves, right? So do this and everyone will be congratulating you. So thank you so much for watching the video.